جی السلام علیکم، مولانا صاحب بول وعلیکم رہے ہیں؟ السلام مفید جی جی، سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ وہی مولانا صاحب، ہم آپ کو فون کر رہے تھے لیکن جی 2-3 دنوں سے بات ہو نہیں پا رہی تھی، آپ بزی تھے۔ خیر ابھی آپ جی فارغ ہیں 2-4 منٹ؟ ہاں بتائیے ارے یہی جاننا تھا کہ جیسے ایک عالم دین ہے، وہ یہ بولے کہ جو 12 ربیع اول کو جو عید ہوتی ہے میلاد النبی، جو نہ منائے وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ تو ہاں اس کا کوئی حدیث چاہیے تھی کہ یہ 12 کیا ربیع اول کو عید منانا، میلاد النبی منانا، یہ مطلب کسی حدیث میں آیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتا دیں؟ عید مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، سرکار کی پیدائش پہ خوشی منانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اللہ مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا، ہم نے اپنا مقدس رسول بھیجا۔ تو رسول کی آمد خوشی، مطلب رسول کی آمد بہت بڑی نعمت عظما ہے۔ تو اس لہذا نعمت پہ سرکار صحابہ نے کی تو 12 ربیع اول کو عید میلاد النبی کا جلسہ جلوس کیا نہیں، تو کیا مطلب وہ سب معاذ اللہ شیطان ہو گئے کیا؟ شیطان ہو گئے؟ مطلب بریلوی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ 12 ربیع اول کو عید میلاد النبی جو نہ منائے وہ شیطان ہے، ابلیس کا معاذ اللہ ساتھی ہے۔ یہ دیکھیے ایک بار چاہے جو آپ ہوں، مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم سے مطلب حجت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ نہیں آپ پوچھ رہے ہیں تو مسئلہ بتاؤں۔ ارے ہاں تو مولانا پھر مطلب مفید کہ صاحب آپ مسئلہ ہی پوچھ رہے ہیں۔ یہ بات سنیے میری بات، دیکھیے بے بات کی بات، ہم الحمدللہ عالم تو عالمانہ گفتگو کیجیے، اگر جی آپ جی کو جی، بہت جاہرانہ گفتگو کرنا، جاہروں کی بات کیجیے، آپ ایک نہیں عالم سے نہیں، بات کر بالکل رہے آپ ہیں نے صحیح کہا، تو عالم بالکل سے آپ نہیں نے مانیے، یہ صحیح۔ جی بلا وجہ بات مت کیجیے کہ جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ ہم ہمارے زمانے آپ نے کبھی سنا؟ ہاں مطلب آپ آپ نے کبھی میرے زمانے سنا؟ ماشاء اللہ، یہ مطلب تو آپ اس خوشی کی چیز سے بات انکار کر رہے ہیں نا مولانا صاحب کی جو ایسا بولتے ہیں مطلب بھائی وہ ہے، غلط غلط کرتے ہے، ہیں؟ جی غلط جی ہوگا۔ الحمد دیکھیے عید میلاد النبی منانا اچھی للہ۔ بات ہے، سرکار کی تعظیم گویا حضور کی میلاد سجانا، محفل بنانا اچھی بات ہے، اس میں اس سے تو سرکار یہ کی تو عظمت بدعت و ہو گئی نا حفاظت دین کرنا۔ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، دین میں ہر نیا میری کام بات بدعت ہے۔ سنیے، جی جی بتائیے۔ میری بات پہ سن لیجیے جی جی بتائیے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف منانا یہ اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے، لیکن یہ کوئی کہ جو نہیں مناتا وہ شیطان، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ اپنی خوشی آپ کی دل آپ کا جی چاہتا منائیے، کیونکہ جی یہ جی واجب و فرض نہیں ہے، مطلب جی، یہ واجب فرض ہوتا ہے جس کو ہر آدمی منانا ضروری ہے، بے شک صحیح واجب فرمایا فرض آپ نے۔ نہیں ہے، یہ خوشی کی جی بات ہے۔ جی ہماری خوشی کہتے ہیں ہم مناتے ہیں، آپ کی خوشی نہیں مناتے مت منائیے، ہم جی آپ کو صحیح لیکن بات ہے۔ اس کی وجہ سے برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہیں، اور نہیں نہیں، نہ بالکل صحیح بات ہے۔ منانے کی وجہ سے آپ ہم کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی، نہیں سمجھ نہیں، رہے ہیں نا؟ منانے کے لیے تو ہم آپ کو روک سکتے ہیں نا، کیونکہ یہ جو کام ہے بھائی، یہ دین میں نیا کام ایجاد ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ہم ہاں۔ آپ کو روک سکتے ہیں، اچھا کیونکہ تو اگر یہ آپ کو اللہ کے نبی نیا کی کام پیدائش کیا ہے پہ کیا؟ مان لیجئے خوشی منانا ہے، تو اللہ کے جی نبی وہ سوموار کو پیدا ہوئے تھے، منڈے کو پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جی جی پیر کے دن، تو اس دن کا روزہ رکھیے، یہ ہاں سنت ہے۔ اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو کوئی آپ کو نہیں روکے گا، لیکن آپ مطلب سال میں ایک دن 12 ربیع اول کو خاص کر کے ایک دن میں عید کو ایجاد کر دیے ہیں کہ عید میلاد النبی۔ اللہ کے نبی جب 2 عیدین چھوڑ کے گئے تھے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تو تا قیامت تک خالی 2 ہی فیسٹیول تہوار رہیں گے، ایک جمعہ ہے وہ عید ہے عبادت کے اعتبار سے، لیکن جو فیسٹیول ہیں، تہوار ہیں، جشن منانے کے دن ہیں، وہ 2 ہیں مسلمانوں کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لیکن یہ عید ہاں۔ میلاد النبی، پھر جشن عید میلاد النبی، تو یہ تو دین میں معاذ اللہ نیا عید ہم نے ایجاد کر دی نا، تو یہ تو معاذ اللہ مطلب بہت بڑا میرے بھائی نیا کام ایجاد کر دیا گیا ہے، تو ہم اس کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، باقی مرضی آپ لوگ کی۔ سنیے دین میں نیا کام کیا ہے؟ جیسے کیا کیا چیز نیا، کیا نیا کام ہے دین میں؟ دیکھیے دین میں جیسے مطلب اللہ کے نبی نے جو دین اسلام ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر جو 3 تھی، جب وہ نازل ہو گئی تھی کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو جب ہاں جو ہاں ہمارا آسمانی دین تھا جب وہ ایک دم کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو دین اسلام میں 2 مطلب جو یہ فیسٹیول ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں، وہ 2 تھے، ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب دین ہاں کمپلیٹ ہونے کے بعد
सैकड़ों सालों के बाद अगर उसको बाद में कोई इसको इजाद कर दे कि नहीं हम ईद मिलादुन नबी मनाएंगे, ये तो सबसे बड़ा भाई ये मतलब फेस्टिवल है, जश्न है, ठीक है, जश्न ईद मिलादुन नबी, तो हम इस काम को मना करते हैं। नबी की पैदाइश पे हम खुश हैं, लेकिन शरीयत ने हमको रोक रखा है कि जश्न हम नहीं मना सकते। हमको बोलने दीजिए ना, आप नहीं मौलाना साहब आप बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए। अगर आप तो हम आप सवाल कर, हमको जवाब भी देने दीजिए ना। आप बता दीजिए मौलाना मफीज साहब आप बोलिए। जी दीन में बिदात सिर्फ मिलादुन नबी ही आपको नजर आया, और बहुत सी चीजें जो बिदात आप खुद कर रहे हैं वो आपको बिदात नजर नहीं आया? हाँ, बहुत सारी बिदात है, तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, ईद मिलाद और शबे बारात और शबे मिराज, बहुत सारी बिदतें याद हैं। हम तो सबको मना करते हैं। शबे बारात ये बिदात है, ये शबे बारात। हाँ, ये शबे बारात तो दीन में पक्की बिदत है ना। शबे बारात में क्या होता है? ये तो मुर्दों की ईद है ना, लोग कब्रिस्तान जाते हैं, मुर्दों की ईद है ये मेरे भाई जिंदों की ईद नहीं है। हाँ, तो शबे बारात को आपने शबे बारात को आपने बिदात कहा ना, शबे बारात बिदात है। जितने मैंने चीजों के नाम लिए, तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, ईद मिलाद और शबे बारात और शबे मिराज, इन रातों को मनाना, जागना, अलग अलग मेरे भाई तरीके से इबादत करना, अलग अलग मेरे भाई तादाद में रकातों में नमाज पढ़ना, ये सब अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, ना कभी सहाबा हमारे ऐसा करते थे। और जो इज्तिमा करते हैं आप, जिस तरीके जो आप यहाँ इज्तिमा राइज है, जिस तरीके का आज ये किस लाइन में है? ये वो देवबंदी लोग करते हैं, तबलीगी लोग करते हैं, हमारा बरेली देवबंदी से कोई लेना देना। आप भी कौन बोल रहे हैं? आप भी तो वही हैं। आप नहीं, हम तो अहले सुन्नत असाबुल हदीस हैं, जिसको पीरों की पीर पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन के जिल्द 1 सफ़ा नंबर 166 पर कह दिया था, अहले सुन्नत का जो नाम है वो है अहले हदीस। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत तो आप एक तबका है, अहले कुरान एक तबका है, वो मुनकिरीन हदीस है वो आज के दौर का। तो वो कहता है कि क्या जरूरत है, सारी चीजें कुरान में मौजूद है, कुरान में सब कुछ मौजूद है। तो वो बातिल फिरका है ना, हम तो अहले हदीस है ना, हम भाई हम अल्लाह की बात को भी मानते हैं, अल्लाह के नबी की भी बात को मानते हैं। अहले हदीस भी तो वो बातिल ही फिरका है, ये कहाँ पे माज़अल्लाह, यानी कि जो गौसे आजम की शान में आपने मतलब भाई तौहीन कर दी, मतलब जिसके नाम की आप लोग वो न्याज करते हो, 11वीं शरीफ मनाते हो, आप उसकी बात मानने से इनकार कर दिए। जी बताइए। तौहीन नहीं कर दिया। आज के दौर के जो अहले हदीस तबका है, ये वही तबका है। ये आज के दौर नहीं, जामिद भाई ये जो हदीस आती है जामिद तिरमिजी में आती है, और इसका हदीस का नंबर है 2229। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक ताइफा, एक ग्रोह, वो हमेशा हक पे रहेगा। तो अहले सुन्नत अहले हदीस वो हमेशा हक पे रहेंगे, अल्लाह के नबी के दौर से लेके तक कयामत तक। तो ये आज के दौर के, पुराने दौर के, ये सब बातें बेकार हो गई हैं। जैसे कौन हक पर कौन रहेगा? इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो एक गिरोह है, जो ताइफा मंसूरा है, वो अहले हदीस है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, 1000 साल के तमाम मुहद्दिसीन ने कहा है कि जो मेरे भाई हक जमात है वो अहले हदीस है। ये बरेलवी देवबंदियों को मेरे भाई किसने कहा हक पे? सुनिए भाई, कौन सबका हक हुआ आपके नजदीक? कौन सबका हक है? मेरे नजदीक वो लोग हैं जो अल्लाह की बात को माने और अल्लाह के नबी की बात को माने, वो होते हैं असाबुल हदीस। अहले हदीस का जो मनहज है, जो उस पे मेरे भाई चलते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हक पे हैं, और जो बाप दादाओं के दिन पे चलते हैं वो मेरे भाई बातिल है। अहले सुन्नत वल जमात ये अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानते हैं। ये तो अहले सुन्नत अहले हदीस है ना। अहले हदीस ही का है। हम लोग जो है, आप लोग तो अहले बिदात हो। सुनिए, बरेलवियों के वहाँ अच्छी बिदत करना, बिदते हसना करना जायज है ना। तो अच्छी बिदत करने वाले होते हैं अच्छे बिदती, ना कि वो अहले सुन्नत होते हैं। आप लोग गैर मुकल्लिद तो अबू हनीफा थे भाई, हम ना मुकल्लिद है ना गैर मुकल्लिद है, हम मुत्तबे सुन्नत है। आप हैं गैर मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुकल्लिद। अच्छा, ये कह रहे हैं मौलाना मुफ्ती साहब, थोड़ा स्पीकर अपना ऑफ कर लीजिए क्योंकि आवाज साफ नहीं आ रही। स्पीकर ऑफ कर लीजिए अपना।
اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ہم لوگ مقلد الحمدللہ ہیں۔ ارے مقلد تو جاہل ہوتا ہے نا، وہ کب سے اہل سنت ہو گیا؟ آپ نے کتنے آپ کے حنفی عالموں کے خود کے قول موجود ہیں کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ میرے بھائی سمجھ نہیں سکتا قرآن حدیث کو، اس لیے اپنے امام کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ کتنے یہی بتائیے کتنے آپ کے غیر مقلد میں کتنے عالم ہیں؟ مطلب کئی لوگ عوام جیسے ارے ہم غیر مقلد نہیں ہیں نا میرے پیارے مولانا صاحب، جب ہم ہیں نہیں غیر مقلد تو ہمارے وہ مولانا کہاں سے ہوگا؟ آپ امام چاروں ائمہ میں سے کسی کو آپ نہیں مانتے ہیں، آپ لوگ ہم چاروں کو نہیں، ہم بلکہ ہم 18 کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، حاکم، امام ابن ابی شیبہ، ہم تمام اماموں کو مانتے ہیں۔ سنیے یار، اب یہی بتائیے، بڑی دقت ہے۔ اچھا مولانا صاحب آپ اسپیکر تو آف کر لیجیے۔ نہیں سنیے، نہیں اسپیکر آف ہے، ہمارا اسپیکر آف ہے تو آواز تو نہیں صاف آ رہی ہے۔ سنیے، اب وہ نیٹ ورک کی پرابلم، سنیے آپ دیکھیے، ایسے دیکھیے موبائل پہ نہیں کوئی بات ہو پاتی ہے، پلیز ایک بات نہیں سنیے، آپ جو ہے کہیں یار ملاقات کیجیے، بات چیت کی جائے، موبائل پہ آپ موبائل پہ کیسے، موبائل پہ کتنی بجے پہ آواز نہیں آ رہی ہے، ہماری آواز نہیں آ رہی ہے، آپ موبائل پہ بہت ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، آپ کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جونپور میں الحمدللہ ہم نے خود میرے بھائی پتہ کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اہل سنت اہل حدیثوں کے تعلق سے جو باتیں ہیں الٹی سیدھی بولتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اسی لیے میں نے فون کیا۔ تو پلیز اچھا دیکھیے، آپ استغفر اللہ، میرا بیان آپ نے کبھی نہیں سنا ہے یا میرا بیان؟ میں نے کیا کہا، میں نے پتہ کیا ہے، جونپور کے کچھ ساتھیوں نے بتایا ہے۔ میرا نام نام نہیں بتایا، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بہت بڑے مولانا مفتی ہیں، اہل حدیثوں کے تعلق سے یہ الٹی سیدھی بات بتاتے ہیں اور اپنے مسلک کو حق پہ ثابت کرتے ہیں۔ سنیے تو میں آپ سے اوپن کرنا چاہتا ہوں، اگر اہل سنت میں اگر آپ کو کوئی بھی دقت لگتی ہو آپ مجھ سے اوپن پوچھ لیجئے، لیکن یہ مسجد کے اندر بیانوں میں یا میرے بھائی جلسے میں اس طریقے کی بات نہ کیجیے۔ سنیے یار، یہی دیکھیے، یہی آپ کو غلط بتایا گیا۔ دیکھیے میرا بیان اگر آپ سنیں کبھی تو کیول میرا بیان اصلاحی ہوتا ہے، اصلاحی بیان ہوتا ہے، نماز روزے کے تعلق سے زیادہ ہوتا ہے۔ نماز روزے کے تعلق سے عوام میں کئی لوگ پڑھے لکھے، کتنی ان کے اندر استنجا کرنے طریقہ، نماز طریقہ نہیں معلوم ہے۔ نماز کا طریقہ تو آپ کو بھی نہیں معلوم ہے نا، فرق تو یہ جب سامنے والے کو خود نہیں پتا ہے تو وہ دوسروں کو مطلب بھائی وہ کہاں سے بتائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، چیپٹر کا نام ہے الاذان اور حدیث کا نمبر ہے 631، سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کوئی حنفی اللہ کے نبی کے جیسے نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ تو اپنے مسلک کی نماز پڑھتا ہے۔ آپ غیر مقلد لوگ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہی تو غلطی ہے نا آپ لوگ کی، غیر مقلد۔ دیکھیے دین اسلام میں نہ کوئی مقلد ہے نہ کوئی بھیا وہ غیر مقلد ہے، سب کو ہونا چاہیے متبع سنت، اہل سنت، اصحاب الحدیث۔ اللہ کی جو بات مانتا ہے، اللہ کے نبی کی بات مانتا ہے، وہ اپنے آپ بن جائے گا اہل حدیث۔ اہل حدیث بننے کے لیے کوئی آپ کو میرے بھائی کنواں نہیں کھودنا پڑے گا۔ حضرت امام بخاری کو آپ مانتا بھی، آپ نے بتایا کہ حضرت امام بخاری کو آپ مانتے ہیں نا؟ ارے امام بخاری تو میرے بھائی جو میرے بھائی محدثوں کے امام تھے الحمدللہ۔ حضرت امام بخاری خود مقلد ہیں۔ کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ خود مقلد ہیں۔ آپ کی فقہ حنفی کی میرے بھائی کتاب ہدایہ شریف، اس کے میرے بھائی جلد 2 صفحہ نمبر 124 کو اترا ہوا ہے کہ امام جو اس میں مطلب کافی سارے بھائی وہ امام کے نام ہے، اور اس میں ایک نام ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل حدیث ہے۔ تو آپ کی فقہ حنفی کہہ رہی ہے کہ وہ اہل حدیث ہیں اور آپ کہہ رہے ہو مقلد ہیں۔ اچھا وہ کون سے امام کے مقلد تھے؟ ایسی بات نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہیں۔ اور سنیے، آپ حضرت غوث اعظم کی کتاب آپ نے گنائی ہوئی، امام بخاری نہ تو شافعی ہیں نہ غوث اعظم، نہ ہی وہ میرے بھائی حنبلی ہیں، ٹھیک ہے؟ سنو یار بات سنیے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب آپ حضرت الطالبین مان رہے ہیں، حضرت غوث اعظم خود مقلد ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز، پوری بنیاد طالبین، آپ
पूरी खोल के छान लीजिए, वहाँ पे मेरे भाई मुकल्लिद का अल्फाज अगर होगा तो इंशाअल्लाह मैं 100 लोगों के साथ इंशाअल्लाह जौनपुर आऊंगा और आपके इंशाअल्लाह हाथों पे बैत आके लूंगा और वहीं बरेलवी बन जाऊंगा। नहीं मतलब पूरी बुनियाद की तालबीन मेरे भाई पढ़ ली, एकदम रट्टा मार लिया, छान मारी, कहीं पे भी नहीं उतरा हुआ है कि शेख अब्दुल कादिर वो मेरे भाई हम्बली मुकल्लिद थे, ये मौजूद ही नहीं है। वो हफी इमाम पहले के लोग जो अपने नाम के आगे इस्तेमाल करते थे हानफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, उसका माना ये नहीं होता था कि वो उसकी तकलीद कर रहे मुकल्लिद हो गए। उस जमाने में माना होता था कि जो हमारी राय है वो उनकी राय से मैच करती है, इस मानने में मेरे भाई लोग अपने नाम के आगे इस्तेमाल करते थे। नहीं वो जो नाम के आगे हम्बली और जो आपने इल्जाम लगाया है मेरे भाई, आपने जो इल्जाम भाई ये लगाया है, ठीक है, कि वो जो थे मेरे भाई वो शाफी थे, ठीक है जी, तो खुद मेरे भाई बुखारी शरीफ में इमाम शाफी के कितने मसलों का भाई वो कायदे से मेरे भाई रद्द मौजूद है। इमाम शाफी के मेरे भाई नजदीक क्या है कि अगर कोई मेरे भाई वुजू करके अगर वो किसी औरत को छू ले तो उसका टूट जाएगा वुजू, ठीक है। इमाम बुखारी ने बकायदा मेरे पे हदीसों से साबित किया है कि वुजू की हालत में औरत को छूने से, बीवी को छूने से वुजू आपका नहीं टूटेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनका रद्द किया है। अब आप खुद सोचिए कि अगर वो भाई मान लीजिए इमाम शाफी के भाई वो मतलब पैरवी करते, तकलीद करते, उनके मुकल्लिद होते तो भला अपने इमाम का रद्द करते। इसी से साबित होता है क्योंकि किसी मेरे भाई इंसान की मुकल्लिद की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने इमाम की, अपने मुजतहिद का रद्द कर दे। तो ये मेरे भाई झूठा बोहतान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस से। ये सुनिए मैं बताऊं, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ ये इमाम आजम के शागिर्दों में है, समझ ना। और मेरे भाई 1/3 मसले मसाइल में इख्तिलाफ किया है। मेरी भी सुनो यार, जी अच्छा बताइए मौलाना साहब। नाराज मतलब मेरी भी सुनिए, तो ये दोनों लोग उनके शागिर्दों में है, इमाम आजम के शागिर्दों में हैं, लेकिन कहीं कहीं मसाइल में इख्तिलाफ नहीं, मतलब है उनके मुकल्लिद उनके शागिर्दों में है, लेकिन अपनी तहकीक भी पेश फरमाते हैं, अपनी तहकीक जैसे जहाँ जरूरत पड़ती पेश फरमाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि इमाम आजम कर रहा। अच्छा सुनिए, हेलो एक बात सुनिए, चूंकि देखिए, हेलो अभी साहब। हाँ बोलिए ना। हेलो आप कहाँ से आप बोल रहे हैं? आप जिसे कुछ बताइए। जी मेरा नाम है अफू खान, मैं यूपी इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, ठीक है। और मेरा मसला खाली इतना था कि आप पहले खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई तहकीक कीजिए और खुद अमल कीजिए किताबो सुन्नत पे, फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को दावत दीजिए, क्या इसमें दिक्कत है। लेकिन अब आपको कुछ आता जाता नहीं और आप अपना आधा अधूरा जो इल्म है, जो मेरे भाई नाची से गलत सलत है, वो आप आवाम को बताएंगे तो आवाम तो मेरे भाई गुमराह हो जाएगी ना आपकी। हाँ भी साहब सुनिए, आप हमारी बात, मैं कभी भी इख्तिलाफी बातें ज्यादा मतलब बोलता ही नहीं। इख्तिलाफी बातें मैं इस्लाही बयान। बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब, अल्लाह आपको अच्छा रखे। सुनो यार, ये तो मेरी बातें सुन लो, थोड़ी बात मेरी बातें सुन लो आप। अच्छा बोलिए, बतिया कीजिए। मुझे जो भी अल्लाह और रसूल की अता से जो भी मुझे टूटा फूटा आता है, समझ रहे ना, मैं इस्लाही बयान, क्योंकि आवाम जो है से कहाँ जा रही है, मतलब इतनी जो है नमाज रोजे की इतनी, मैं उसी पर उनकी कुछ जो मुझे टूटा फूटा आता है, मैं अपने आप को आपकी नहीं बनता, मुझे जो भी आता है मैं उनकी इस्लाही बात, इख्तिलाफी बात पर कोई गुफ्तगू करता ही नहीं। इत्तेफाक से कभी कोई बात आ जाती है, वही इसके कदम भी नहीं खा सकता, आ जाती है तो मैं उसकी वजाहत भी कर देता हूँ, ये बात है। लेकिन मैं आपने एक बात कही कि आप जो है रद्द करते, मैं रद्द और तर्दी, मेरा कोई बयान कहीं पे आप देख लीजिए तो उसमें इंशाअल्लाह इस्लाही पहलू ही रहता है, इस्लाही बयान ही आपकी तरफ रहता है। मैं इख्तिलाफी बातों से बहुत दूर रहता हूँ, मैं इख्तिलाफी बातों में बहुत नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। आज अवाम बेचारे को बनाने ही नहीं आ रहा है और हम उसको कोई बहुत ऊंची इख्तिलाफ सुना करके क्या करेगा। अवाम को जरूरत है इस्लाह तक लाने की, समझ रहे हैं ना। माशाअल्लाह मौलाना साहब, वाकई आपकी बातों से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम काफी इम्प्रेस हुए और बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको अच्छा रखे। जी रह गई बात आप, क्योंकि मोबाइल देखिए, बात ये होती है कि आप इत्तेफाक से कभी सीख लाई इधर
तो मैं आपको दावत देता हूँ, मुलाकात किया जाए। देखिए जी इंशाल्लाह कोई चीज झुझला करके हल करने तो नहीं हल होती, समझ रहे हैं ना। जी आप जी मुलाकात कीजिए इंशाल्लाह। मुझे जो भाई जो भी मालूम है मैं आपको भी बताऊंगा, जो आपको मालूम आप भी मुझे बताइए। दीन का काम यही होता है। नहीं बिल्कुल सही फरमाया आपने, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपका इखलास हमको। पेश की जाती है, बात पेश की जाती है। अब रह गई, देखिए हम लोग क्योंकि इसमें मामला ये है, हम भाई जो भी है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात और इमाम आजम अबू हनीफा के हम मुक़ल्लिद हैं, समझ रहे हैं ना। यही तो आप लोग गलती कर दे तो लास्ट में आके ये कहा कीजिए कि इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। इमाम आजम के मुक़ल्लिद होने का मतलब यही है कि मुक़ल्लिद क्यों है भाई? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो खुद कहते हैं कि मेरी बात पे भाई एकदम मत चलो, मैं कल कुछ और कहता हूँ, आज कुछ और कहूँगा, कल अपनी बात बदल दूंगा। सुनिए उसमें बात बढ़ा के बहस नहीं करना चाह रहा हूँ आपसे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आजम अबू हनीफा नहीं, ये मनहज आपका गलत है मौलाना साहब, ठीक है। आपने बाकी देखिए माशाल्लाह, देखिए आपने जब इस्लाही बात की, अच्छी बातें की, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपका साथ दिया, दुआएं दी। ये आप गलत कह रहे हैं भाई। क्या आपको अल्लाह ताला ने कहा या अल्लाह के नबी ने कहा कि इमाम आजम के मुक़ल्लिद बन के रहना? जबरदस्ती क्यों मुक़ल्लिद बने हुए हैं भाई? भाई सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हम आप बात बढ़ाइए, बात खत्म कर, बात मत बढ़ाइए। हम हैं, आपको नहीं कह रहे हैं, आपको बुरा लगे, आपको अरे हमें बुरा नहीं लग रहा, हमें अफसोस हो रहा है कि माशाअल्लाह आपके नाम के आगे भाई ये मतलब भाई उतरा हुआ है मौलाना। एक तरफ मौलाना भी है, दूसरी तरफ मुक़ल्लिद भी है। आपको मालूम नहीं है मुक़ल्लिद जो होता है वो जाहिल होता है? नहीं, मुक़ल्लिद जाहिल नहीं होता, ये तो कहने वाला जाहिल है। इस पे इजमा है, जो इजमा को ना माने वो दायरे इस्लाम से बाहर है। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुक़ल्लिद होता है वो जाहिल होता है, वो आलिम नहीं होता, और इस पर सबका इत्तेफाक है। आप गलत कर रहे हैं, मुक़ल्लिद जाहिल नहीं होता, ऐसा कहने वाला जाहिल होता है। वो माज़अल्लाह इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह को आपने जाहिल कह दिया, और जितने अहले इल्म ने इस बात पे इत्तेफाक किया था आपने सबको बना दिया जाहिल। मैं किसी जाहिल नहीं बना, लेकिन मुक़ल्लिद को जो मुक़ल्लिदीन को जो जाहिल है वो खुद जाहिल है, समझ रहे हैं ना। हम आपको हनफी आलिमों के जो बयान है ऑन वीडियो, उन्होंने कहा है कि हम तकलीद इसलिए करते हैं क्योंकि हम जाहिल हैं, हम कुरान हदीस समझ नहीं सकते, इसलिए हम अपने इमाम के पीछे चलते हैं। तो वो तो खुद ही मान रहे हैं कि मुक़ल्लिद जाहिल है, और आप करो जो कहे वो मेरे भाई जाहिल है। आप सुनिए, आप और आपकी आवाम, आपकी आवाम कितना कुरान हदीस से मतलब निकाल कर कितना समझ लेते हैं, कितना समझ लेते हैं। जो आप और आपकी आवाम जो है कुरान और हदीस को खुद पढ़ कर कितना मतलब निकाल ले जाए। कई भाई खुद कौन पढ़ता है? अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में कहता है सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 7 में कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो अहले जिक्र से पूछ लो। तो अगर हमें कोई चीज मेरे भाई नहीं समझ में आती है तो हम उलमा से पूछ लेते हैं, लेकिन बात दलील पूछते हैं। सुनो यार, उलमा यही तकलीद है, यही उलमा से पूछ। ये तकलीद नहीं है, ये तालीम है। अरे मौलाना साहब आप कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हैं? आप एक चीज पूछिए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई चीज और आप हमको बता रहे हैं तो ये इल्म हासिल करना है, तालीम हासिल करना है, ये कोई माज़अल्लाह तकलीद थोड़ी ना है। तालीम हासिल करना ना, तो आपके नजदीक तो सिर्फ कुरान हदीस ही है, तो तालीम हासिल करने की कैसे चलेगा? अरे तो कुरान हदीस में ही है ना कि इल्म हासिल करो। तो कुरान भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, सही अल-जामे की मेरे भाई हदीस है कि दीन का इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। तो ये तो अल्लाह के नबी ने कहा है ना, इल्म हासिल करो, ये तो हदीस में आया है। बिल्कुल और अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो उलमाए हक हैं वो अंबिया के वारिस हैं। तो जो उलमाए हक हैं, जो मेरे भाई आपको आसमानी दीन की बात बता रहे हैं, आप उनसे इल्म हासिल कीजिए, और जो बाप दादाओं की दीन की बात बता रहे हैं उनसे बिल्कुल इल्म ना हासिल कीजिए, क्योंकि जो उनका रास्ता है, मनहज है, अकीदा है, वही मेरे भाई एकदम बातिल है। तो ये सब जो मुक़ल्लिद हैं, गैर मुक़ल्लिद है, चारों इमाम को मेरे भाई मानिए, उनकी इज्जत कीजिए। ये सब मेरे भाई तकलीद अकलीद मुक़ल्लिद उक़ल्लिद अपने आप को बोलना मेरे भाई बंद कीजिए। आप ना मानो यार, मैं आपको अरे मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना। देखिए अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में ला इकराह फिद्दीन,
दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, तो हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, मानना या न मानना आपके ऊपर है। सुनो भैया, अच्छा बोलिए। मेहरबानी करके, अच्छा बोलिए। साहब जी। हमको आप मत समझाइए, हमको मत समझाइए, आप समझ रहे ना। ठीक है, अब इंशाल्लाह मेरे भाई जिंदगी में आपसे बात नहीं करूंगा, जब सामने वाला खुद ही कह रहा है कि मुझे ना बताओ ना समझाओ। बात सुनो यार, बात करने की मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन आप ये बात हमें हम अल्हम्दुलिल्लाह जब मुकल्लिद हैं हमारे नजदीक जो है 4 चीजें, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली कोई बात ही नहीं है। मुकल्लिद होना तो ये आपने खुद को मुकल्लिद बनाया है ना। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे यहाँ 4 रसूल अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबको मुत्तबे सुन्नत होना चाहिए, अल्लाह के रसूल की इत्तबा करना चाहिए, ना कि इमाम की तकलीद के ऊपर हमको अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। आप अल्लाह की शान में तौहीन कर रहे हैं मेरे भाई, ऐसा बोल के। जिस काम का हुक्म मेरे अल्लाह ने भाई वो नहीं दिया, अल्लाह के नबी ने नहीं दिया, उसको आपने अपने ऊपर वाजिब कर लिया। यार आप मत मानो भैया, हम तो अल्लाह के रास्ते दीन आप मत मानिए, लेकिन आप मत मानिए, हम आपको जरूरत कह नहीं रहे हैं, आपकी अपनी तबीयत है, मत मानिए। अच्छा चलिए, मैं ठीक है इंशाल्लाह भाई, हम फोन काट रहे हैं, खाली आप इतना बता दीजिए कि मेरे भाई इमामों की जो पैरवी है, तकलीद है, ये वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया, या कभी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे जाने के बाद तुम लोग मेरे भाई एक मसलक बना लेना और हनफी बन जाना और मेरे मुकल्लिद बन जाना। यार जब किसी ने कहा नहीं तो क्यों जबरदस्ती आप मेरे भाई अपनी अकल से मुकल्लिद बन रहे हैं? सुनिए, आपके यहाँ वसूल शरअ 2 है ना, क्या है आपके वसूल शरअ? हमारे वहाँ मेरे भाई जो उसूल हैं जो अल्लाह के नबी दे के उसूल शरअ नहीं, वो बताइए, मुख्तसर बताइए भाई, मुख्तसर। हाँ मुख्तसरन बता रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हारे बीच में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की मेरे भाई किताब और अपनी सुन्नत, यानी कि मेरे भाई कुरान हदीस। ये हमारे मेरे भाई बुनियादी 2 उसूल है। अब इसी में से इजमा आ गया, अमल सहाबा आ गया, और ये इज्तिहाद आ गया, कयास आ गया, ये सारे उसूल इसी में है। इसी हम भी उसी में मानते हैं। सुनिए, तो वो जो है कुरान और हदीस से अलग नहीं है। इजमा और कयास ये कोई जो है अलग से वसूल शरअ नहीं है, ये उसी से मुस्तमिल, उसी से निकले हुए हैं। लेकिन जो है इजमा को कयास को मानना ये तकलीफ थोड़ी ना है। नहीं, तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ नहीं है। तकलीफ की तारीफ होती है किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं नहीं कहा है कि हाँ तुम लोगों की बिना दलील की बातों को मान लो। हाफिज साहब आप मत मानिए ना, लेकिन अल्लाह इकराह की दीन आप कह रहे किसी आप अरे तुम कहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं मौलाना साहब, यहाँ तो इल्मी बात हो रही ना। देखिए, कहने सुनने से जो है ना भाई, जो इल्म में बढ़ता है। हाँ सही बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 3641, कि तुम मेरा जो पैगाम है लोगों तक पहुंचा दो, अगरचे एक आयत क्यों ना आती हो। तो मैं अल्लाह और अल्लाह के नबी का पैगाम आपको पहुंचा रहा हूँ, जितना हमें पता है। मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है, मैं कहाँ कह रहा हूँ जबरदस्ती कर रहा हूँ। वही बात नहीं, आप जो चलिए ठीक है, माशाल्लाह आपका इखलाक बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह ठीक है। आप कभी तशरीफ लाए, हमारे इलाके में। जी इंशाल्लाह, जौनपुर आएंगे तो बिल्कुल आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप मुलाकात। और सुनिए, आपको जितने ये बताया है ये कि वो मौलाना मुफ्ती में, आप यकीन मेरे, मैं दीदी किसी के इख्तिलाफ का बयान मैं नहीं करता हूँ। मैं किसी भाई एक अब्दुल्ला भाई हैं, वो कोई जौनपुर से मेरे पास अभी मेरे भाई कुछ दिनों पहले मैसेज आया था। वो बोले कि अप्पू भाई एक हमारे मतलब वो मौलाना साहब हैं, थोड़ा उनकी इस्लाह कर दीजिए, उनका जो अकीदा है थोड़ा मतलब भाई वो उलट हो गया है अपने ताल्लुक से, अहले हदीसों को मतलब भाई वो अच्छा नहीं समझते हैं। तभी मैंने आपको कॉल करके इस्लाही बात करने की कोशिश की। और अगर हमने कुछ मेरे पे गलत बोल दिया हो तो मौलाना साहब हम माफी मांगते हैं, क्योंकि हम आपकी उम्र में इल्म में बहुत छोटे हैं, ठीक है, आप हमारे बड़े हो। नहीं सुनिए, वो जिन्होंने ये कहा, देखिए क्योंकि मैं मदरसा है, मदरसे में पढ़ाता हूँ, समझ रहे हैं ना, और इलाके में हूँ, जिससे भाई आना जाना लोग दरमियान मरासी में आना जाना होता, लेकिन आप वो गलत उन्होंने बताया। मैं किसी को, देखिए हम किसी को गलत यार क्यों कहें, हम किसी उल्टा पुल्टा कहाँ कहेंगे। नहीं बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैं आपसे दिली माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको फोन किया, आपका जो वक्त है उसको लिया, ठीक है। सुनिए, आपने बहुत अच्छा किया, आपने फोन किया, आपसे कम से कम रास्ता बना, अच्छी बात है। देखिए
हम तो भाई एक अच्छी बात आपने फोन किया। देखिए ठीक है, थोड़ा सा मौका है, वक्त है, आदमी कहीं कहीं जबान से तेज निकल गया, वो माफ कीजिएगा, बात नहीं है, जबान से कहीं तेज वो आवाज निकल गई। अरे वो तो खैर उसके लिए तो अल्लाह ताला भी माफ कर दे, आप भी माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल, आप कभी भी तशरीफ लाए, मुलाकात होगी, सामने कोई बातचीत होगी, इस बात नहीं रह गई ये कि अब हम जो कर रहे हैं भाई, हम जो भी जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, जो भी आप कर रहे हैं, देखिए आप भी जो कर रहे हैं अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं अपनी आखिरत के लिए, तो क्यों ना एक साथ होके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया जाए, काहे के लिए इख्तिलाफ करना। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।